So hello my dear friends guys, I am Dirpan Srivastava and guys today I am back with a new video. I mean second number video guys. मैं जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट नंबर वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को गाइज पूरा फुल एक्सप्लेन किया है एंड गाइज आई ऑल्सो नो दैट मैंने ये कहा था कि मैं चैप्टर नंबर 2 का भी वीडियो अपलोड करूँगी बट गाइज द मेन पॉइंट इज दैट वी हैव लैक ऑफ टाइम गाइज वी हैव नॉट टाइम टू वॉच सेकेंड चैप्टर वीडियो सो दैट्स वाई गाइज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज ये ग्रुप में भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी आई मीन पहले से अपलोड है बट गाइज इन दिस वीडियो वी आर गोना discuss we are gonna you can say full explanation of this all question answer. So guys without wasting our time let's begin to our question. Guys first of all in our semester first guys इसमें से टोटल 5 lessons आने वाले हैं ओके जो कि हमारे सेमेस्टर नंबर 1 में आएंगे. So guys let's begin. Here it is guys, the most important question which is definitely come in your exam, difference between environmental science and environmental studies. गाइस इन दोनों के बीच में क्या आखिर एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है. सो इन्वायरमेंटल साइंस फोकस ऑन द स्टडी ऑफ नेचुरल सिस्टम. गाइस हमारा जो इन्वायरमेंटल साइंस है वो हमारे नेचुरल सिस्टम के ऊपर फोकस करता है ओके एंड द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट while environmental studies focus on the interaction between human and natural system. So guys environmental science is totally based on our natural system like atmospheric pressure, hydrosphere, lithosphere and all. In the sense you can say that it's the outer layer like weather, air, wind, ये सब हमारे इसके बेसिस पर हमारा ये जो इन्वायरमेंटल साइंस है ये वर्क करता है ओके टोटली लाइक आर नेचुरल जो भी हमारा नेचर है आसपास का लाइक दिस बट आर इन्वायरमेंटल स्टडीज फोकस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचुरल सिस्टम. इन्वायरमेंटल साइंस हमारे यू कैन से इंटरेक्शन बताता है ह्यूमन का नेचुरल सिस्टम से क्या इंटरेक्शन है इन द सेंस नेचुरल सिस्टम का हमारे डेली लाइफ में या फिर लिविंग थिंग्स में अदरवाइज नॉन लिविंग थिंग्स में उनका क्या अफेक्शन हो रहा है इसके बारे में हमारी इन्वायरमेंटल स्टडीज बताती है ओके. सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम बाय द वे एंड द कनेक्शन बिटवीन साइंस एंड पॉलिसी. साइंस एंड पॉलिसी का क्या कनेक्शन है ऑलराइट. सो हियर इट इज environmental studies. Environmental study is a multidisciplinary subject which studies various dimensions. Guys ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है अपने फर्स्ट नंबर वीडियो में that what exactly it's multidisciplinary subject. Scientific, social, cultural, economic, political, etc. of the environment. Its issues and challenges and tangible solutions in a holistic way. It studies the human-environment interaction and its result at the micro and macro level. Guys, micro and macro level के हमारे जो results आते हैं उनके basis पर हमारा ये environmental studies work करता है. Alright, so here it is guys, environmental science. So by the way, environmental science strictly deals with the scientific aspect of the environment. Guys, ये totally हमारे scientific के basis पर deal करता है in the sense its complex problems and tangible solutions, whereas environment studies, by the way, in addition to the scientific aspect, also deals with the socio-economic, cultural, traditional, legislative and historical dimensions of the environmental issues. All right. So guys, यहाँ तक हमें clear हो गया. Okay. Now come on our next point. For example, guys यहाँ पर एक example है. So let's read it. Suppose a river is getting polluted. Guys suppose करो जो एक river है वो pollute हो गया है all right और भी ऐसा हो रहा है okay due to the discharge of untreated waste water into the river. Due to the discharge of untreated waste water. Guys वेस्ट वाटर जितने भी हमारे गंदे पानी है dirty water से ये पानी एक तरह से नदियों में डाला जा रहा है उसके वजह से हमारी जो रिवर है वो क्या पॉल्यूट हो रही है ओके एक तरह से हमारी रिवर गंदी हो रही है इन द सेंस रिवर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा. बाय द वे द स्टूडेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस विल ऑब्जर्व द causes फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस विद इन द रिवर वाटर. ऑफ कोर्स गाइस चेंजेस तो होगा ही अगर हम नदी में गंदे पानी डालेंगे सो उसमें चेंजेस तो आएगा ही बिकॉज जो बैक्टीरिया होते हैं वो इतने जल्दी स्प्रेड होते हैं कि हमें खुद पता नहीं चल पाता. सो दैट्स वाई एंड वो तो फिर भी वाटर है रिवर है. सो गाइस अगर हम रिवर में अगर थोड़ी सी भी वाटर पॉल्यूशन होगी सो चेंजेस ऑटोमेटिक होगा. Its effect on the aquatic and adjoining ecosystem.
and scientific mitigation measure for the river pollution. In addition to the above dimensions, environmental studies will also observe the impact of the pollution on the nearby population, their livelihood and culture etc. अब गाइस जब अगर हमारा वाटर ही पॉल्यूट हो जाएगा सो उसके आसपास जितने भी लिवलीहुड है इन द सेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग पर भी उनका इफेक्ट उतना ही पड़ेगा जितना कि एक नॉर्मल इंसेक्ट्स पर पड़ता है. ओके, इन द सेंस यहाँ पर एक्वेटिक की बात हो रही है. हियर इट इज एक्वेटिक एंड एडजॉइनिंग इकोसिस्टम. सो गाइस जितना इफेक्ट इनके ऊपर पड़ेगा उतना ही इफेक्ट एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ पर भी पड़ेगा. ओके, ऑलराइट. सो हियर इट इज, दैट्स हाउ दिस इज एंड. गाइस आपको समझ में आ गया व्हाट इज द कंक्लूजन? गाइस द कंक्लूजन इज दैट environmental science is totally become on the nature and environmental studies is totally become that how does the nature affect us. ये जो नेचर है इसका क्या अफेक्शन पड़ रहा है. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल गाइज हियर इट इज नाउ वेरी मच कोल्ड, सो दिस कोल्ड इज कॉल्ड एनवायरमेंटल साइंस. एंड व्हेन वी आर सेइंग दैट हाउ डज दिस कोल्ड अफेक्ट ऑन मी. गाइज मेरी जो स्किन है अगर यहाँ पर सपोज करो अगर ये जो कोल्ड जो टेम्परेचर है वो अगर माइनस में चला जाए तो फिर मेरा बॉडी में रिएक्शन होगा. ऑफकोर्स होगा रिएक्शन. एंड गाइज सिर्फ मेरे बॉडी में ही नहीं, यहाँ पर जितनी भी छोटी छोटी इंसेक्ट है जस्ट लाइक दिस पैरट्स, पिजन्स, गाइज इन सभी में एक तरह से चेंजेस आएंगे. ऑलराइट, बिकॉज ठंड इन्हें भी लगती है, फील होगा तो उनमें चेंजेस आएंगे. एंड गाइज टेम्परेचर बढ़ेगा और डाउन होगा. अगर ये माइनस में जाएगा तो हमें ठंड लगेगी. इन द सेंस आवर बॉडी चेंजेस एंड वी कैन से these weather are affecting us. So this is called environmental studies. I hope that guys कि आपको environmental science and environmental studies के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा 100%. ऑलराइट.